स्टूडेंट्स हम लोग जो कैंसर से रिगार्डिंग ब्लड हम लोग जो है वो पूरा अलग से कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे ल्यूकीमियाज क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, सारी डिजीज़ रिलेटेड टू द ब्लड। अभी हम इम्यून सिस्टम से रिलेटेड अगर डिजीज़ की बात करेंगे तो उसमें हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है वो लिम्फोमाज आ जाता है। तो थोड़ा सा इस वीडियो को प्लीज़ देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए। Lymphomas, which manifest in lymphocyte cells, and myelomas, which manifest in immature plasma cells found inside the bone marrow. Lymphomas are typically broken down further into two different types: Hodgkin's lymphomas, which manifest in the lymphatic system, and non-Hodgkin's lymphomas, which manifest in the blood. Leukemia gets its name from the term leukocyte, meaning white cell. Leukemia is a cancer characterized by an abnormal increase in immature white cells called blast cells, which are partially differentiated in the bone marrow. These blast cells are the daughter cells of the hematopoietic stem cells. Because the white blast cells have not fully differentiated, they remain in the bone marrow, creating the unique characteristics and effects of the disease. Lymphoma gets its name from a specific type of white cell called lymphocytes, which primarily function in the blood and the lymphatic system, with key roles in the immune system function. There are many different types of lymphoma, usually described in one of two major classifications: Hodgkin's and non-Hodgkin's. It's worth noting that the World Health Organization no longer differentiates between Hodgkin's and non-Hodgkin's, but instead lists approximately 80 specific types of lymphoma based on cell characteristics. Hodgkin's lymphoma is a cancer that begins in a group of lymph nodes, usually the neck, and then spread to other lymph nodes. Eventually, the cancer can migrate through the blood and form cancers in virtually any other organ in the body. Hodgkin's lymphomas are more rare than non-Hodgkin's lymphomas, but because their growth and progression are very predictable, they are one of the most treatable forms of cancer with very high survival rates. Non-Hodgkin's lymphomas are the most common types of lymphomas. These cancers begin in lymphocytes known as B cells and T cells. Growth and progression for non-Hodgkin's lymphomas are more difficult to predict and therefore more difficult to treat. Myelomas get their name from partially differentiated myoblast cells in the bone marrow that fail to fully differentiate into mature plasma cells. With myeloma cancers, the myoblast cells grow abnormally large, forming tumors inside the bone marrow. यस स्टूडेंट, अभी आपने थोड़ी सी एक एनिमेशन देखी है जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि लिम्फोमास होता क्या है। मैं अब आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है उसके क्या क्या कंटेंट्स हैं, थोड़ा सा मैं इसकी तरफ लेके जाती हूँ। हम लोग देखेंगे कि लिम्फेडिमा होता क्या है। पैथोफिजियोलॉजी जो है इसकी यही होती है कि आपको पता है कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है कि जो कि जाके जो कि रिच होता है प्रोटीन से, और वो सर्कुलेट करता है थ्रू द लिम्फोकुटेनियस जंक्शन के थ्रू जुगुलर वेन के अंदर, जो कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स या लो मॉलिक्यूलर वेट के जो भी पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह आपकी जो होती हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रिटर्न हो जाती है थ्रू द सर्कुलेशन, और फिर वो कहाँ जाती है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जाती है। इंटेस्टाइनल जो लिम्फ होता है उसको काइल कहते हैं कि जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गए, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स हो गए, या ग्लाइसट्रेट्स वगैरह हो गए, या फैट सॉल्युबल आपके विटामिन एडिक वगैरह हो गए, वो उनको क्या करवाता है, डायरेक्टली सर्कुलेट करवाता है बाईपासिंग द लिवर। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो अदर इम्यून सेल्स होते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। कौन कौन से इन्फ्लेमेशन है जो कि आपके लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू योर द कंटेंट। हम लोग जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ हमने क्या देखनी है कि आपकी एनाटमी क्या है लिम्फेटिक सिस्टम की, आपकी फिजियोलॉजी क्या है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो कि टोटली आपके लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। अगर आप बुक में इस चैप्टर को देखेंगे तो उधर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर भी है, उसको हम लेटर ऑन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। एक्यूट लिम्फेजाइटिस होता है इन्फेक्शन जो कि बहुत कॉमन है। ये क्या है, एक इन्फ्लेमेशन है
ड्यू टू द लिम्फेटिक जो कि आपने कवर करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा जो है वो बैक्टीरिया करवाता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस करवाते हैं, एस ऑरियस जिसे कहते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, पूरे के पूरे जो है ना लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं और लिम्फ नोड के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको आप कहते हैं लिम्फेडेंटाइटिस। लिम्फेडेंटाइटिस होता है क्या है, क्या चीज़ जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का नाम रखना याद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे एक्सेस और स्वेलिंग का प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होकर इनलार्ज हो जाता है। फिर आप उसको नीडल वगैरह डाल के आप उसकी बायोप्सी वगैरह करके चेक कर रहे होते हो कि कितना लार्ज है, अंदर से कितना कंटेमिनेटेड हो गया। इवेंचुअली दिस में प्रोग्रेस टू बैक्टीरिया, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से सेप्सिस हो जाता है, विच इज़ नोन एज सेप्टिसीमिया। नॉर्मल साइन जो इन्फेक्शन के होते हैं वो क्या होता है, आपको पता होता है कि कलर, स्मेल उसकी चेंजेस हो रही होती है, उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल जो है ना वो अजीब सी हो जाती है। और वो किस तरह से होते हैं, रेड स्टिक, जैसे कि लाल लाल धब्बे होते हैं, वो पूरी स्किन के ऊपर एक्सिलर साइड पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक नोड होता है, वहाँ पे जाते हुए आपको फील होंगे, मतलब एक बड़ा सा पैच होगा रेड कलर का। और आपको बकायदा जब आप पेशेंट का हैंड वगैरह देखेंगे तो उसमें लगेगा कि नील, जैसे कि नील नहीं पड़ गई होती, और वो एक्सिला की तरफ एक लेयर स्पाइक्स फॉर्मेशन, जिन्हें स्पाइक्स बनी होती लंबी लंबी धागे टाइप की, वो वहाँ तक जारी होती है। लाइंस की बात कर रहे हैं जो कि इन्फ्लेम करवाती लिम्फेटिक को, अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसकी पिक्चर। द पार्ट शुड बी रेस्टेड टू रिड्यूस लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड एलिवेटेड। ऑब्वियसली स्वेलिंग हो गई है तो आपने लटका के तो नहीं रखना, आपने उसको ऊपर रखना है, ताकि अगर एंटी ग्रेविटी आप उसको पोजीशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा आपकी पेरिफेरी के अंदर स्वेलिंग हो रही होगी। और इंट्रावेनस एंटीबायोटिक के थ्रू आप ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ठीक है, एक्यूट लिम्फेजाइटिस ऑफ द आर्म है। ये स्ट्रीक्स बन गई हैं यहाँ पे, ये एक निशान रेड कलर का, यहाँ पे पस वगैरह पड़ गई है और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई। और ये आप ब्लूइश एरिया देख रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ये देखिए ये लाइनिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पे क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, टेंडरनेस होना शुरू हो जाती है। लिम्फ एडिमा क्या होता है, Lymphedema may be defined as abnormal limb swelling caused by the accumulation of increased amount of high protein interstitial fluid। सारा का सारा मतलब एक नॉर्मल क्वांटिटी में आ रहा है और ड्रेन हो रहा है, तो लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपर्ली आपका काम कर रहा है। बट अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आके एक्यूमुलेट हो जाए और एडिमा फॉर्म आ जाए तो दिस इज़ नॉन एज लिम्फेडिमा। और क्या चीज़ आके एक्यूमुलेट होती है तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। सेकेंडरी टू डिफेक्टिव की कितने टाइप्स की होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी भी मैं आपको बताती चलूँगी। सेकेंडरी क्या हो जाती है, उसके अंदर कैपिलरीज वगैरह भी जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। डेफिनेशन इधर बताई गई है, सेकेंडरी टू डिफेक्टिव लिम्फेटिक ड्रेनेज, आपको बताया है कि प्रॉपर्ली ड्रेनेज नहीं हो रही होती है, एक्यूमुलेट हो जाता है, कंटेमिनस हो जाता है, बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया वहाँ पे हो जाता है, नेट फिल्ट्रेशन भी ठीक नहीं हो रही थी। द सिवियरिटी ऑफ द यूनिलैटरल लिम्फेडिमा कैन बी क्लासिफाइड। अब आपके पास पेशेंट आ रहा है स्मेलिंग लेके, हाउ विल यू क्लासिफाइड, आपने देखना है कि पेशेंट की कंडीशन माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अब वो आप किस तरह से करेंगे चेक, लिम्फ वॉल्यूम से। अगर 20% से कम है तो अब आप बोलेंगे कि पेशेंट हैविंग द माइल्ड लिम्फेडिमा, उसके अंदर आप क्या बैंडेजेस वगैरह दे दी, आपने दवाइयाँ वगैरह दे दी। मॉडरेट है तो चलें, आपने इंट्रावेनस इंजेक्शंस दे दिए, कंप्रेशन बैंडेजेस दे दी, एंटी ग्रेविटी आपने नहीं रखना, आपने उसको ऊंची जगह पे रखना, ये सारी चीज़ें ट्रीट। और अगर सिवियर है तो सिवियर की फिर अलग एक पूरा प्रोटोकॉल आ जाता है कि आपने सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना है और क्या करना है, किस तरीके से नहीं। सिवियर के अंदर यूजुअली जो प्रेजेंटेशन, जब तक कंडीशन मॉडरेट टू सिवियर रहेगी तो सेप्टिसीमिया और बैक्टीरिया आपको मिलेगा, ठीक है। सिवियर के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंडीशन बढ़ जाती है और वो स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए हमें एक अलग प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको लिम्फेडिमा हो जाए, पेशेंट ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑब्वियसली स्वेलिंग हो गई है और वो कह रहे होते हैं हमें जो कपड़े टाइट होना शुरू हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया, वरम हो गया है हाथों में, ज्वेलरी टाइट होना शुरू हो गई है, हल्का हल्का से दर्द रहता है या कभी कभी सिवियर पेन हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन आदि होती है, ठीक है। अगर स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, ये ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के अंदर मॉडरेट, और जब सिवियर स्टेज होती है ना तो उसके अंदर आपको न्यूरोलॉजिकल साइन भी मिल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके नर्व प्लेक्सस को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं।
पेन एंड नीडलिंग लग रही होती है, क्रैम्प, स्किन प्रॉब्लम क्या हो रहा हो जाता है, अजीब स्किन हो जाती है आपकी, जो है ना जैसे खाल आपकी हट रही हो और बहुत ज़्यादा वो ब्लूइशनेस आ जाती है। तो ये सारी की सारी जब चीज़ें आना स्टार्ट हो जाए तो वो क्या हो जाती है, आपकी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है। अक्सर पेशेंट कह रहे होते हैं हमें बैक एक या जॉइंट प्रॉब्लम शुरू हो गई या स्लीप फुट, इतना बड़ा पाँव हो जाता है, एलिफेंटाइटिस मतलब एलिफेंट जैसा। अभी और कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगी तो ये इस तरीके के हो जाते हैं। वॉट एवरी पेशेंट में लिम्फेडिमा शुड रिसीव, क्या क्या चीज़ें जो हैं ऐसे पेशेंट को मिलनी चाहिए जिनको लिम्फेडिमा हो। सबसे पहली बात है आप पेशेंट को गाइडलाइन करेंगे, उसका लिम्फ स्वेल हो रहा है, उसके कॉज क्या है, आपने उसको चेक करना। हाइजीन केयर आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है जिसकी वजह से पेशेंट जो है किसी भी इन्फेक्शन से बच सकता है। आपकी एक होना चाहिए प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी आपने देनी है ताकि जो है ना वो फंगस वगैरह ना लग जाए या एथलीट फुट कंडीशन ना हो जाए। दूसरा आपने एंटीबायोटिक पे भी पेशेंट को रखना है। हॉस्पिटल एडमिशन फॉर क्यूर एक्यूट एपिसोड्स अगर हो रहे हैं तो फिर आप नीड है तो आपने हॉस्पिटल भी एडमिट करना है। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज बतानी है कि उनको बताना है, एंकल पंपिंग आपने करवानी है। दूसरा आपने पाँव एलिवेट करके रखना है, कंप्रेशनल बैंडेजेस देनी है। आप इसमें डीप टिश्यू फ्रिक्शन मसाज भी दे सकते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, मल्टी लेयर लिम्फेडिमा बैंडेजेस होती आती है, जिस तरह से कंप्रेशनल बैंडेज होती है, सम सॉर्ट ऑफ दिस कंप्रेशनल गारमेंट्स वगैरह, सॉक्स, फुटवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी डाइट आपने लेनी है जिसमें कि सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो, बिकॉज सोडियम वाटर रिटेंशन करवाती है तो इट्स वेरी डेंजरस। सॉल्ट वगैरह ऐसे पेशेंट का इंटेक आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है, बिल्कुल ही कम। दूसरा असिस्ट टू सपोर्ट सर्विस इन नेटवर्क, आपने हर चीज़ में ऐसे पेशेंट को देखना है। सबसे पहले हमने स्टेजेस देखे, प्राइमरी था, मॉडरेट था, सिवियर था। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये एक्वायर्ड है। तो आपको आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मैं इसको रिपीट करती चलूँ। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसके जो बैक्टीरिया इसका कॉज करे आपको वो पता होना चाहिए, इसका साइन एंड सिम्टम्स पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इसकी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी। 3 होती है, किस तरह से देखते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, किस पेशेंट में आपने क्या देखना है। फिर इसके बाद आपकी क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। प्राइमरी इडियोपैथिक होती है, उसका कोई कॉज नहीं होता है, कंजेनाइटल होती है, लिम्फेटिक डिस्प्लेसिया भी जिसको हम कह रहे होते हैं। सेकेंडरी किसी ना किसी अंडरलाइन कॉज की वजह से हो रही होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ है प्राइमरी लिम्फेडिमा इज़ यूजुअली फर्दर सबडिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फैमिली हिस्ट्री, एज देख रहे होते हैं, ऑनसेट देख रहे होते हैं। उसके बाद आप सारी जो है ना सर टेस्टिंग वगैरह करके आप देख रहे होते हो, लिम्फ एंजियोग्राफिक फाइंडिंग्स आप देख रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें तो आपने देखना होता है। प्राइमरी या सेकेंडरी में लिखा हुआ है किस तरह से आप क्लासीफाई करेंगे, कंजेनाइटल हो, ऑनसेट 2 साल के कम अरसे से पहले हुई हो, फेमिलियर हो, सॉरी ये पिक्चर आपके पास आ गई है, और ये सारी चीज़ें हों। सेकेंडरी किसी भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, वो लोग जो खेतों के अंदर काम करते हैं, जो फसलों के साथ काम करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह दे रहे होते हैं, ये जो गंदे पानी के अंदर खड़े रहते हैं या कोई सीपर्स वगैरह होते हैं, इसकी प्रेवलेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर, बिकॉज हम लोग हाइजीनिक का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे होते। तो ये सारे के सारे इसके कॉजेज़ है कि रेडियोग्राफी, लिम्फ नोड, सर्जिकल एक्सेशन आप किस तरीके से करवा। अच्छा सॉरी, आई मिक्स्ड अप। आपको रूट पता होना चाहिए, रूट पता होना चाहिए पैरासाइटिक है, फंगल है, क्या है। अब उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, समटाइम्स ये होता है इतना फैल जाता है कि एक जगह नहीं रहता और स्प्रेड आउट हो जाता है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम एक मूवेबल सिस्टम है, तो मैलिग्नेंसी में चला जाता है। मेटास्टेटिक वो कैंसरस फॉर्म के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर आप रेडियोथेरेपी दे रहे होते हैं, सर्जिकल एक्सेशन कर रहे होते हैं, लिम्फ नोड आप निकाल के रिमूव कर देते हो, ठीक है, सारी चीज़ें। और इसकी वजह से आपका सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलिपिटाइटिस हो सकता है, जिस तरह से आप स्पाइडरमैन टाइप की आपको नसें वगैरह नज़र आ रही है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स हैं, गाइडलाइन दी हुई है लिम्फेडिमा की, आपने इतना ज़्यादा याद नहीं रखना। दिस इज़ द पिक्चर, ये आप देख रहे हैं टिपिकल लिम्फेडिमा, किस कदर स्वेलिंग है, और ये रेड कलर की पैचेस स्ट्रीक्स आपको मिल रही है, और ये देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा स्वेलिंग इसके अंदर हो गई है। ये फुट ऑफ अ पेशेंट विद टिपिकल लिम्फेडिमा, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल फिंगर्स ही नहीं पता लग रही, इतना ज़्यादा लिम्फ जो है वहाँ पे आके मिल गया है। अपर लिम्ब का लिम्फेडिमा हो तो क्या क्या होता है आपने इतना याद नहीं रखना, लोअर लिम्ब का हो क्या इतना याद नहीं रखना। रिस्क फैक्टर है, आपको सिर्फ थोड़े बहुत पता होना चाहिए कि अगर यहाँ की हो जाए अपर लिम्ब का तो हम सर्जरी कहाँ की कर देते हैं, रेडियोथेरेपी आप दे रहे होते हैं, लिम्फ नोड को रिमूव कर देते हो, कौन से वाले जो कि आपके एक्जिला में होते हैं।
सारी चीज़ें थोड़ा बहुत बस आपने देखना है। अच्छा, आपने मैलिग्नेंसीज आपको याद होनी चाहिए जो कि एसोसिएटेड हो आपकी लिम्फेडिमा से। लिम्फेंजियोसार्कोमा जिसको आप ये कह रहे होते हैं, कैपोसिल सार्कोमा, HIV, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, लाइपोसार्कीमा। अच्छा, मैं दूसरी चीज़ आपको बताती चलूँ, ये जो मैलिग्नेंसी हो रही है ये तब हो रही है जब आपका फ्लूइड रिटेंशन मोर देन 40% है। मीन्स जब आप सीवियर स्टेज की तरफ जा रहे हैं तो आप मैलिग्नेंसी में जा रहे हैं। माइल्ड एंड मॉडरेट कंडीशन के अंदर मैलिग्नेंसी जो है वो रिपोर्ट नहीं होती। जब सीवियर और वेरी सीवियर स्टेज आ जाए और जब आपका लिम्फ जो है वो एक जगह पे नहीं रहे और उसके बाद मूव होना शुरू हो जाए और आपके सिस्टम को इन्वॉल्व करे, तो फिर वहाँ पे मैलिग्नेंसीज आ जाती है जिसके अंदर एबनॉर्मल सेल प्रेजेंटेशन हो रही होती है। बेसल सेल कार्सिनोमा, लिम्फोमा, आपको ये पता होना चाहिए। नॉन वेस्कुलर और लिम्फेटिक। नॉन वेस्कुलर जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, जनरल डिजीज़ जिसकी वजह से ये हो सकता है, लोकल डिजीज़, ये पूरी गाइडलाइन बनी हुई है। और ड्रग्स की वजह से कौन कौन सी ड्रग है, या ट्रॉमा जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। यू शुड नो कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि डिफरेंशियली क्या क्या डायग्नोसिस है, ठीक है ना। अब आपके पास इंप्रेशन बन रहा होता है जब आपके पास पेशेंट लेके आ रहा है, तो कौन कौन से और रीजंस हैं जिसकी वजह से ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं या ये प्रेजेंटेशन आ रही होती है। तो उधर लिस्ट लिखी हुई, आप इसको थोड़ा सा बस देख लीजिएगा। वेनस हो तो क्या, आर्टीरियल हो तो क्या। सेकेंडरी लिम्फोमास क्या होते हैं, लिम्फेडेमास क्या होते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लिम्फोएडेमा। देयर आर several वेल रिकग्नाइज्ड कॉज इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, न्यूप्लेजिया एंड ट्रोमा। मैंने आपको बताया प्राइमरी किसी भी वजह से हो सकती है, कोई भी चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है। सेकेंडरी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसका कोई ना कोई कॉज हो सकता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन हो गई, ये सार्कोमास के कैंसर्स बन गए, या किसी ट्रॉमा की वजह से, जो कि टेबल 58.6 आप उसको देखेंगे, जो कि मैं आपके सामने भी डिस्प्ले भी कर रही हूँ। ट्रॉमा इन टिश्यू डैमेज की वजह से हो जाए तो उसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, आप क्या क्या करेंगे। क्लासिफिकेशन बेसिकली दी हुई है कि मैलिग्नेंसी डिजीज़ है तो क्या क्या हो सकता है। वेनस डिजीज़ है तो क्रॉनिक वेनस इंसफिशिएंसी हो सकती है, वेनस अल्सरेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें। इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको लिम्फेडेमा हो रहा है तो उसमें क्या क्या प्रेजेंटेशन होगी, आपको ट्यूबरक्लोसिस मिल सकती है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस मिल सकता है, डर्मेटाइटिस, सोरियोसिस, ये सारी चीज़ें मिल सकती है। तो बेसिकली ये चार्ट भी आपको याद होना चाहिए जिसमें आप ये देखेंगे कि अगर सेकेंडरी लिम्फेडेमा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये कॉजेज़ आपके सामने लिखे हुए, ठीक है, और प्रेजेंटेशन के साथ आपके पास पेशेंट आता है, तो वो थोड़ा सा आपने देखना है। ओके, this is the figure 58.4. The patient is a 6 decade present with rapid onset of lymphedema of the right leg. अब आप देख रहे हैं किस तरह से प्रोग्रेस कर गया। On further investigation, she was found to have a locally advanced bladder carcinoma. ठीक है, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि ब्लैडर का कार्सिनोमा था जिसकी वजह से फ्लूइड बढ़ता चला गया और उसकी राइट लेग की इन्वॉल्वमेंट हुई और फिर ये सारी कंडीशन हो गई है। Okay, note that like most cause of lymphoedema, the swelling is greater proximally than distally. देखिए ना, ये proximally जा रहा है like distally, तो अक्सर लोगों का proximal भी हो सकता है या distal भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो आपने देखनी होती है। नेक्स्ट आपका टेबल है लिम्फोग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी लिम्फेडेमा। अगर कंजेनाइटल है, ये इतना आपने डिटेल में नहीं जाना, आपको बस शॉर्टली पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फिलियारिसिस आ जाता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है लिम्फेडेमा का, ठीक है ना। मैं आपको वॉर्म बैक्टीरिया के बारे में बताया, आपको इन्फेक्शन के बारे में बताया, आपको फंगस के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें। इट इज़ पर्टिकुलरली प्रेवलेंट इन अफ्रीकन कंट्रीज़, इंडियन, साउथ अमेरिका, मैंने आपको बताया क्या वजह हो सकती है। निमेटोड्स होते हैं, वुचेरिया, बैंक्रॉफ्टी वगैरह, ये सारी आपके फसलों वगैरह का जो पानी खड़ा होता है उसके अंदर ये पैदा हो जाते हैं और उसके बाद जो है ना वो किसी भी आदमी को जो है वो क्या करते हैं, अपना शिकार बनाते हैं, टेकिंग एज एन होस्ट टू इन्फेक्ट हिज बॉडी। और 90% ऑफ द केसेस जो होते हैं ना वो मॉस्किटो की वजह से भी हो सकते हैं। द डिजीज़ इज़ एसोसिएटेड विद पुअर सैनिटेशन, मैंने अभी आपको बताई ये बात। पैरासाइट एंटर लिम्फेटिक फ्रॉम द ब्लड एंड लॉजेस इन लिम्फ नोड में जाता है, ब्लड के थ्रू लिम्फ नोड में जाता है और वहाँ पे क्या करवाता है, फाइब्रोसिस करवाता है, ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता है, शॉर्टनिंग करा देता है और डायरेक्टली फिजिकली डैमेज इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट को क्या कर जाता है, डिस्टर्ब कर जाता है। एक्यूट फ्लैरिसिस के साथ अगर आपका पेशेंट आ रहा है तो उसकी क्या हिस्ट्री होगी। एक्यूट के सारे साइन एंड सिम्टम्स आप देख रहे हैं, फीवर वगैरह, ये सारे एक्यूट के। अगर क्रॉनिक के साथ आ रहा है
तो अगर एक्यूट के साथ आ रहा है तो आपको फीवर है, हेडेक है, मलेरिया है, इंग्वाइनल और एक्सिलरी लिम्फेडेनाइटिस है, लिम्फेजाइटिस है, सेलुलाइटिस है, ये सारी चीज़ें। अगर क्रॉनिक के साथ आ रहा होता है तो लिम्फेडेमा ऑफ द लेग, आर्म एंड प्रेजेंटेशन के साथ आ रहे होते हैं। एलिफेंजाइटिस होता है जिसको आप कहते हैं पॉडो कॉनियोसिस। इसके अंदर जो है ना वो जो पेशेंट का जो पाँव वो एलिफेंट की तरह हो जाता है। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में मोर कॉमन होता है। दूसरा बेयर फुट कल्टीवेशन ऑफ सॉइल कंपोस्टेबल क्लाइन, मैंने आपको बताया अगर आप नंगे पैर जा रहे होते हैं फसलों वगैरह में तो इस तरह की डिजीज़ आपको लग सकती है। आप देख रहे हैं दिस इज़ द टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एलिफेंजाइटिस ड्यू टू फ्लैरेसिस बहुत बढ़ गया तो एलिफेंट जैसा पाँव आपका हो जाता है। दूसरी कंडीशन आपकी होती है रिमोटॉइड एंड सोरियोटिक आर्थराइटिस हो जाता है आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एंड लिम्फ नोड फाइब्रोसिस की वजह से। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या आपका सांप वगैरह या बिच्छू वगैरह अगर किसी को काट ले तो उसकी वजह से ये सारी की सारी कंडीशन हो जाती है। और उसका भी एक कॉज होता है लिम्फेडेमा। पेरिटिबियल मैक्सोडेमा इज ड्यू टू द ऑब्लिटरेशन ऑफ द इनिशियल लिम्फेटिक बाय म्यूचिन, ये भी एक कंडीशन दी हुई है। उसके बाद आपके लिए फैक्टिशियस लिम्फेडेमा, ये किस वजह से होता है आपका शार्प कट कोई लग जाए एग्जामिनेशन वगैरह से, या हिस्टेरिकल डिसयूज इन पेशेंट विद साइकोलॉजिकल साइकाट्रिक प्रॉब्लम। ओ गॉड, मतलब कि साइकोलॉजिकल साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं किसी पेशेंट के अंदर कि वो अपने ही जो है ना चीज़ें काटना वगैरह शुरू कर दे तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। इमोबिलिटी करवा सकते हैं, जनरलाइज एंड लोकलाइज इमोबिलिटी ऑफ एनी कॉज लीड टू क्रॉनिक स्वेलिंग। आपको पता है बहुत अरसे तक आप बैठे रहो या बेड रिडन हो तो क्या हो जाता है फ्लूइड आपका इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। जिस किन पेशेंट्स के अंदर यूजुअली ज़्यादातर हो रहा होता है हेमिप्लेजिक स्ट्रोक पेशेंट जिनको बहुत अरसे तक बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट के अंदर भी इमोबिलिटी करवा रहे हो तो वहाँ पे स्वेलिंग बढ़ती एक डिजीज़ कॉज कर सकती है। लाइपोएडिमा क्या होता है एक्सक्लूसिवली वुमेन के अंदर प्रेजेंट होता है, बायलेटरली यूजुअली सिमेट्रिकल होता है, एनलार्जमेंट ऑफ द लेग्स एंड समटाइम द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ द फैट। लिम्फेडिमा जिसको आपने सुना होगा कि लव हैंडल्स वगैरह मतलब जो आपके टमी के इर्द गिर्द होते हैं, ये आपकी इस तरीके से जो फैटी डिपोजिशन होती है वुमेन में ज़्यादा होती है। आपको पता है प्यूबर्टी अक्सर टीनेजर्स में मोटापा बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, ट्रंक को भी इन्वॉल्व कर देती है। फीट आर नॉट इन्वॉल्व लीडिंग इन्वेसिव शोल्डरिंग इफेक्ट ऑफ मैलुलाई, नॉन पिटिंग होती है। सिंपल सी बात है फैट्स जम जाना। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन आप लिम्फोडेमा की कैसे करेंगे, आपने क्या करवाना है एक वो करवाना है टेस्ट करवाना है जिसको आप कहते हो लिम्फ एंजियोग्राफी, आप उसके थ्रू कर सकते हो, आपने ले ली। इसके अलावा आपने क्या करा कि आइसोटॉप्स वगैरह कोई डाइज वगैरह दे दिए, ठीक है, और कैमरा वगैरह इंसर्ट किया, उसके थ्रू आप देख रहे होते हो। सीटी आपने करवा लिया, एमआरआई करवा लिया वेन्स वगैरह देखने के लिए, लिम्फेटिक नोड्स वगैरह देखने के लिए आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया। आप इसको मैनेज करते हैं, सबसे पहले आपने पेन को किया, स्वेलिंग आपने कंट्रोल करनी है, स्किन हाइजीन की आपने बहुत कंट्रोल करनी है, लिम्फेटिक ड्रेनेज करवानी है, एक्सरसाइज करवानी है, ये सारी की सारी चीज़ें। ये पूरी की पूरी समरी बॉक्स है कि आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आपने हिस्ट्री लेनी है, पास मेडिकल आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सिर्फ आपने देखना है, स्किन केयर वगैरह। ड्रग्स आपने कौन सी देनी होती है इसके अंदर, आपने बेंजोपायरोन्स देनी होती है, फ्लेनॉइड्स, ये सारी की सारी आपकी हाई स्टेरॉइड्स ड्रग्स होती है जो कि आप दे रहे होते हैं, डायूरेटिक्स दे रहे होते हैं ताकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन और ना हर चीज़ को आपने देखना होता है। और अल्टीमेटली आपने क्या करना होता है जब सारी चीज़ें हो जाती है उसके बाद आप सर्जरी की तरफ आ जाते हैं। बाईपास प्रोसीजर, लाइपोसक्शन आप कर रहे होते हैं, कंप्रेशन बैंडेज के थ्रू कोई ना कोई आप प्रोसीजर्स कर ही रहे होते हैं, तो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। और ये देख रहे हैं अगर इस तरह का बहुत बड़ा पाँव हो जाए तो फिर आपने क्या किया, गोश्त के टुकड़े निकालना शुरू कर दिया, वहाँ पे स्किन फ्लैप रखा, 6 महीने आपने पेशेंट को रेस्ट दे दिया। इस तरह से आपने फ़ैट के टिश्यू को छोटा कर दिया, स्किन ग्राफ्टिंग की, यहाँ से जो फालतू फ़ैट थी वो निकाल दी और इस तरह से फ्लैपिंग कर दी, कॉस्मेटिक सर्जरी हो जाती है ये। थैंक यू।